I went to World Trade Center also. And इत्तेफाक की बात है कि 4 दिन बाद ही we were shocked जब देखा कि वर्ल्ड ट्रेड टावर को अटैक कर दिया गया है. मैं 1972 में आई हैपन टू गो टू मंचर ओलंपिक्स. पैलेस्टाइन ने जो अटैक किया था इसराइल प्लेयर्स में, तो अभी तक वो मेरे रोंगटे खड़े हुए आते हैं. सो आई वाज इन सेम विलेज बट डिफरेंट एरिया, बट देन इट वाज सो शॉकिंग. काफ़ी ऐसे इंसिडेंट मैंने देखे हैं एंड आई रियली फेल्ट कि आई एम लकी, आई एम ब्लेस्ड कि मैं बच के वहाँ से आ गया हूँ. सर, टू बिगिन द कॉन्वर्सेशन, आज थोड़ा सा हम ऑफ बीट जाएंगे, कुछ कैंडिड चलेंगे, ठीक है. कुछ ऐसा करेंगे जो आज तक नहीं हुआ है, ठीक है. इन योर इंटरव्यू आपने बहुत सारे जगह इंटरव्यू दिया है, लोग बहुत कुछ जानते हैं आपके बारे में, लेकिन अभी भी डेफिनेटली सर, क्योंकि 54 इयर्स का एक्सपीरियंस, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपने सब कुछ बता दिया या लोग सब कुछ जानते हैं. कुछ ऐसी बातें जो आज तक नहीं हुई हैं वो हम करेंगे, क्योंकि हम इस शो में बात कर रहे हैं एक किसी इंडिविजुअल के जर्नी के सेलिब्रेशन के बारे में, ठीक है. एक सफ़र जो किसी ने अपने सालों साल की मेहनत के थ्रू वो परस्यू करा है, उस जर्नी में हम थोड़ा सा गोते लगाएंगे उस सफ़र में, ठीक है. आपके थ्रू आपकी कहानी, आपकी ज़बानी हम सुनेंगे. सो टू बिगिन द कॉन्वर्सेशन, हम आपके बारे में कुछ बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहेंगे. आप अपने बारे में क्या इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे? इसमें आप अपने एजुकेशन के बारे में बता सकते हैं या फिर फैमिली के बारे में बता सकते हैं, और वॉट एवर यू वॉन्ट टू यू फील कंफर्टेबल टू शेयर विथ, कि कैसे कैसे हम लोग करेंगे. तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जो रविंद्र कुमार जैन जी को पहली बार देख रहे हैं, जो आपको जानते नहीं हैं, ठीक है. तो उनके लिए आप क्या इंट्रोडक्शन कैसे करेंगे? हाउ यू विल ग्रीट द ऑडियंस अबाउट यू? ओवर टू यू सर. Hello everyone, good evening. Hi Sameer, nice seeing you. Good evening sir. I am so blessed to be born in a family of a scholar family of. My grandfather was a magistrate at law, practicing in Lahore High Court, and he was a big scholar and philanthropist of Punjab. That time, Lahore High Court was only High Court for Punjab. So he used to take two cases only, and he used to take no money, 80% of money he used to do free of cases. So my childhood days, I stayed under his shadow in Panipat up to class 6. Because my parents had gone to Calcutta in 48. So I joined my parents in 64 in Barakpur, the army cantonment in Calcutta. And I did my schooling from Barakpur. I did my college from Calcutta University, Bangladeshi Morning College. I had a course of MBA. So that's my starting my journey. Nice. Barakpur was a very interesting place. We've been as a army cantonment. It's a very named place. Mangal Pandey Park was a place in Barakpur. So this is very, very beginning. I learned a passion from my grandparents, my father, and my journey kept going up. Like Barakpur, I used to be very, very follow Mother Teresa. They had a charity mission ashram in Sodhpur. So every second Sunday I used to go and spend some time there with the patient and all. That passion I used to have. Then I was a Rotary also, almost 72 I joined the Rotary also. So I've been going to Rotary clubs, trying to do social work. And I used to be very, very happy and passionate doing social work. Although being eldest son of my family, I had to join my business in Singharsi. I was sent to Singharsi in Bihar, Dumka and Pakud. It's a Jharkhand area. The company was making a radar station near Nepal border. So I was given an assignment to look after that work. So I stayed in Singharsi for 9 months. Then 70, I went to Tejpur. Tejpur, we were working at Tejpur Air Force, surrounding Tejpur, we were making a runway. So I joined the company as a S-class company in 69, and 54 years of my journey I've really completed. Now you're 74. I'm 74, and 54 years of my age, my life, I learnt a lot and been working in different part of country. Very nice sir. अच्छा, राहत इंदौरी साहब का एक शेर है, ठीक है. वो कहते हैं कि जब उनको कहा जाता है कि आप बड़े बुजुर्ग हो गए, वो किसी स्टेज पे उन्होंने कहा था
कि जब उनको बुजुर्ग की तरह देखा जा रहा है कि आप बड़े सीनियर हैं, ये है वो है, उन्होंने एक प्रॉम्प्टली कहा था कि ठीक है, आज मेरी उम्र 70 बरस है, मेरी उम्र कभी 20 बरस की भी थी, ठीक है, तो मेरे को वो मत बताओ कि मैं एक अलग दुनिया से आया हूँ, ठीक है। तो सर जैसे अब 74 कहने के लिए मतलब लगता है कि सर अब 74 बहुत बड़ी, हम बच्चे हैं सर आपके सामने, राइट। तो 74 ईयर्स का जो पूरा एक लाइफ जर्नी रहा, व्हेन यू वर यंग, जब आपने काम करना शुरू नहीं करा था, ठीक है, जब आप हमारे तरह थे, राइट, कि जो मर्जी वो कर रहे हैं, ठीक है, ज़िंदगी में मतलब लिबर्टी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बड़ी कम थी, उस वक्त आप कैसे थे सर? मैं फुल पैशन था, वेरी एडवेंचरस। मैं ट्रैकिंग के लिए हमेशा जाता था, एयरफोर्स में साइकिलिंग करते थे। आई स्पेंट लॉन्ग टाइम्स इन बैरकर क्लब इन लॉन्ग टाइम्स आई टू प्ले। बल्कि एक बहुत इंटरेस्टिंग मैच था बिटवीन इंडिया, रामकृष्ण एंड थॉमस को ब्राज़ील, डेविस का मैच था। उसमें आई वाज मेंबर ऑफ केरला साउथ क्लब एंड आई हैपन टू बी लाइन्स मैन इन दैट क्रूशियल मैच। और ये किस साल की बात है सर? ये 70-71, 70-71। जब कृष्णा वर टू सेट डाउन, 2 गेम डाउन, 2-5, he won 17 game one after one. First time we won the Davis Cup, went to challenge round in Australia. So I was full of life. I was in sports. I used to go for morning walk, for trekking, for marathon, for cycling. Even Sundays को we used to Park Street for jam session. उषा तब के हम लोग we used to hear her in Morindo and Trinkas, 70 earlys. So those time was different. I full still of enjoy. experience and adventures. I still enjoy. I still relish. ये मन का perception है. Age is only number. You still enjoy. And at this age also in the morning it could be foggy, rain. I do walk. I love enjoying every moment of my life with happiness. ट्रू सर, ट्रू, डेफिनेटली। तो सर उस टाइम पे मौज मस्ती लाइक तो डेफिनेटली होता ही होगा सर, है ना, यंग हैं आप, है ना, आप 20-25 साल के हैं, 30 साल के हैं, तो डेफिनेटली मौज मस्ती है, फिल्में देखना, गाने सुनना, इंजॉय करना। तो वो कैसा सीन था सर? क्यों आप अभी पिक्चर आप देखने का टाइम मिल पाता है आपको, या नहीं, देखते हैं तो picture कैसा हमने देखते हैं? नहीं देखी, लेकिन मैं क्योंकि एल्डेस्ट सन था फादर का, मैंने अपनी कंपनी ज्वाइन की वेरी अर्ली एज। तो काफ़ी वी यूज्ड टू लर्न अ लॉट because I've been learning from my engineers, from my father. Complete project we were taking and उसके ऊपर नहीं, वो तो अपने प्रोफेशन में आने के बाद, जैसे प्रोफेशन से पहले, I very young age, है ना, यंग एज में मूवी आप देखते थे? मूवी डेफिनेटली देखता था, बट आई यूज्ड टू ओल्ड मूवी लाइक मदर इंडिया, ओल्ड तो उस टाइम पे वही नई मूवी थी सर, आज से पहले आप बात करो करीबन मदर इंडिया, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट 70s की है। यस, मदर इंडिया 70 से पहले की है सर मदर इंडिया मेरे ख्याल से। बाकी मदर इंडिया इज अराउंड 60 to 70 के बीच में। ये मूवी देखते थे बट काफ़ी कम देखते थे। एंड उन दिनों आंधी वक्त कुछ मूवी जो है वो आज तक भी भूल नहीं पाते मदर इंडिया, वो दिल में अभी तक जो है हमारे माइंड में वो मूवी रहती है। जो आजकल मूवी जो है देख के हम भूल जाते हैं, एंड वी डोंट रिकॉग्नाइज दैट व्हेन जो फिल्म एक्टर हैं आजकल के, हम पहचानने मुश्किल हो जाती है। पर पुराने मीना कुमारी या राजकुमार, राज कपूर, एक बड़ी डिफरेंट पर्सनालिटी होती थी, उनकी यादें भी आती हैं। एंड आई डोंट फॉरगेट दो फेसेस टिल नाउ। तो सर आज अगर यहाँ बैठ के वो 20 साल वाले रविंद्र जैन को आप मिस करते हैं कभी कि यार मज़ेदार लाइफ थी, या अभी लगता है कि नहीं अभी मज़ेदार है? व्हाट यू थिंक अबाउट? हर लाइफ में एंजॉय कीजिए, बट डेफिनेटली 20 में हम बड़े यंग थे तो काफ़ी मस्ती मारते, साइकिलिंग कर रहे हैं, गोइंग टू कैलकाटा फ्रॉम बैरकपुर बाय साइकिलिंग। एंड मॉर्निंग ट्रेन, मैं मॉर्निंग कॉलेज पढ़ता था मॉर्निंग में, तो 4:30 में हम घर से आते थे, एंड 5:15 की हमारी ट्रेन थी सियालदा के लिए। हम 5:45 पहुँचते सियालदा, कॉफ़ी हाउस में सुबह कॉफ़ी पीते थे। एक पैशन था, वी हैड फन। एंड देन दिन में वी यूज्ड टू कम बैक होम, देन यूज्ड टू वर्क, यूज्ड टू लर्न मार्केटिंग, अकाउंट्स, वी यूज्ड टू सी ड्राइंग्स। तो हर चीज़ को एक जज्बा था मन में। मैं 18 घंटे को कुछ भी करता रहता हूँ, मतलब वर्किंग है, इन्जॉयमेंट है, बट मैं 6 घंटे से अधिक कभी लाइफ में नहीं मैंने वेस्ट किया सोने के लिए, उससे अधिक। तो शुरू से मेरे में जज्बा था। सोशल काम भी करते थे, जैसे मैंने कहा मदर टेरेसा से मैं बड़ा प्रभावित था, उनके आश्रम जाते थे हर संडे को या सेकेंड संडे को। फिर रोटरी के अंदर भी काफ़ी अच्छे काम करते थे हम लोग। तो शुरू से एक मन में जो सीखा मैंने बड़ों से, उनके वही हमने
ट्रेडिशन हमने फॉलो की है बिल्कुल बिल्कुल सर, और मुझे खुशी हम मिलती आपसे थी, सीख रहे हैं। अच्छा लगता था करने में, जो खुशी मिलती थी। आप देखिए एक फंडा है कि हम किसी को जो भी हम देने में खुशी मिलती है उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। कोई मुकाबला नहीं उसका, इट्स अ रियल हैप्पीनेस यू गेट। अल्टीमेट अल्टीमेट। किसी गरीब को मुझे याद है कि बैरकपुर स्टेशन में कभी मैं ब्लैंकेट लेके, जो गरीब आदमी होते थे उसमें स्टेशन में उनको जगह मैं ब्लैंकेट उड़ा के आता था, तो जो मन में एक संतुष्टि मिलती थी उसका कोई मुकाबला ही नहीं है कोई कोई कि मुकाबला मैंने अच्छा काम कुछ कर सका। यस, किसी का काम आ पाना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं होती है एक इंसान के लिए। जी उनकी ब्लेसिंग मिलती होंगी, जो जब Yes. उठते होंगे किसी ने कंबल ढका, तो ये तो एक हमने ज़िंदगी में शुरू से ये हमने दिया है, देखा किसी है, का किया, और आपने, अच्छा लगता था किसी को हमको। आपने मतलब किसी को जरूरत थी, आप खड़े हो गए उस टाइम में, कहा कि भगवान तेरा भला करे, दैट इज एक्चुअली ब्लेसिंग, उसी ब्लेसिंग जिंदा दैट इज है, एक्चुअली ब्लेसिंग उससे हम व्हाट आई चल फील। रहे हैं। यस, कोई बड़ों की ब्लेसिंग है, वी आर ब्लेस्ड, ईश्वर की ब्लेसिंग है, कुछ दोस्तों की दुआएं हैं, हम इसी से हम कहीं चल ना रहे कहीं हैं। हम ये कर रहे हैं सर, आपका आशीर्वाद है। ये इतना जल्दी हम स्टार्ट करने वाले थे नहीं वैसे, ठीक है, हम और टाइम लेने वाले थे, पता नहीं ये इवेंचुअली हो गया। हम आज शूट कर रहे हैं बैठ है के, जी। राइट। तो अभी हम लोग क्वेश्चन पे बात कर रहे थे। आपने लास्ट जब हम लोग कॉन्वर्सेशन कर रहे थे, कई बार मतलब आपने बताया, मेंशन किया उसमें, वो सियाटल वाली कहानी की आप बात कर रहे थे, ठीक है, सियाटल वाली या कोई और सर कहानी थी जो हम लोग बात करना चाह रहे थे, या न्यूयॉर्क में न्यूयॉर्क वाली? तो आप थोड़ा सा उस पर सर लाइट अप करिए ना उस मोमेंट को, व्हाट वाज दैट इफ यू माय आर सन कंफर्टेबल। हैड गॉन टू यूएसए 97, he was to open in Delhi IIT and joined in DC in Deloitte. सो मैं 01 से मैंने अमेरिका के जाना शुरू किया है, और हम लोग 8 बार, मैं मेरी वाइफ अमेरिका हम होकर आए हैं। इंसिडेंटली सितंबर 01 में वी वर इन न्यूयॉर्क, आई वेंट टू मैनहट्टन, आई वेंट टू वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ऑल्सो एंड पेंटागन ऑल्सो। एंड इत्तेफाक की बात है कि 4 दिन बाद ही वी वर शॉक्ड जब देखा कि वर्ल्ड ट्रेड टावर को अटैक कर दिया गया एंड इट वाज कोलैप्स्ड। वी आर सो फॉर्चुनेट कि हम 3 दिन पहले, 4 दिन पहले न्यूयॉर्क में थे, एंड आई वाज इन इंडियानापोलिस विद माय डॉटर। माय आपके डॉटर सारे भी नियर अमेरिका एंड में है फ्रॉम लास्ट 26 ईयर। आपके सारे नियर एंड डियर वंस लाइक सेफ सिक्योर थे दे उस ऑल टाइम? सेफ ओनली, बट कुछ लोग डेफिनेटली हमने सुना कि दे लॉस्ट देयर लाइफ, but not very close to, but then we knew, we met them sometime, but then very shocking. And ये इतना बड़ा इत्तेफाक जो है, it was a big, very shocking thing in the world, and we were all very scared. तो उसके बाद में अमेरिका में हम जरूर रहे, बट हम लोग काफ़ी डरे हुए थे, एंड वी केम बैक आफ्टर 1 वीक। तो जिंदगी में ऐसी घटना मेरे साथ में घटी है कि वो सो क्लोज, जिसे कहते हैं वेरी क्लोज सेफ, हमने वो 2-3 घटना ऐसी देखी हैं। बताओ सर कुछ इसके बारे में बताइए। लाइक मैं तेजपुर में था, मैं 72 में, मैं एयरफोर्स में ऑफिसर मेस में 11 विंग में आई यूज्ड टू स्टे। तो मॉर्निंग वॉक करते थे, तभी विक 21 जो है मॉर्निंग 6:30 देखो ऊपर से चल रहा है, सडनली आई फेल्ट कि इट्स जस्ट कमिंग डाउन, एंड आफ्टर विद इन 5 minutes द स्मोक केम, जस्ट गॉट क्रैश्ड इन फ्रंट ऑफ माई ओन आइज, वी जस्ट रेन, तो स्मोक निकल रहा है। सो 2-3 घटना मैंने इस क्रैश की अपने आंखों के सामने देखी है। एक दिन मैं बालीपाड़ा में जीप में जा रहा था, एंड सामने देखा प्लेन जा रहा है, तभी सडनली आवाज़ हुई एंड द प्लेन MiG 21 क्रैश्ड। तो बहुत नियर, वेरी नियर एंड वेरी फार बच्चे भी हैं, ऐसी घटना देखी है और मैंने फेस किया है। लाइफ इज वेरी शॉर्ट, नो? मैं 1972 में आई हैपन टू गो टू मंचल ओलंपिक्स। वेरी फॉर्चुनेट, वी न्यू सरदार गुरबख्श सिंह हु हैज जॉइंड कैप्टन इंडियन हॉकी टीम। इनकी कैलकाटा में इम्पैक्स कॉरपोरेशन मोटर पार्ट्स की दुकान थी, हमारी कंपनी से डील कर रही थी, हमारे फैमिली फ्रेंड थे। एंड सरदार जसदेव सिंह जो हिंदी कमेंटेटर, वो भी हमारे फैमिली फ्रेंड थे। तो 72 में आई वाज कीन टू गो टू श्रीलंका, देन अल्टीमेटली गुरबख्श भाई सेट की वाई डोंट टू कम टू मेरे ओलंपिक्स। तो मुझे लकली बाई फादर अलाउड, आई वेंट टू ओलंपिक्स, आई स्टेड विथ हिम फॉर 1 वीक इन ओलंपिक विलेज। मैं 4th को पहुंचा, एंड 4th नाइट को द इंसिडेंट टुक प्लेस। और पैलेस्टीन वहाँ से आए उन्होंने 5th मॉर्निंग को, एंड जो इजरायली थे उन्होंने उनको, दे किल्ड 2 इजरायली स्पोर्ट्समैन एंड 9 इजरायली वर टेकन बाय देम। सो आई वाज इन सेम विलेज बट डिफरेंट एरिया, बट देन इट वाज सो शॉकिंग, लगता सामने एकदम डेथ घूम रही है। तो मेरी ज़िंदगी में काफ़ी ऐसे इंसिडेंट मैंने देखे हैं, और फुल ऑफ थ्रिल, एंड आई रियली फेल्ट कि आई एम लकी, आई एम ब्लेस्ड कि मैं बच के वहाँ से आ गया हूँ। एक और इंसिडेंट है 72 का, वी वेंट टू रोम, वी वेंट टू भरूच
फ्रॉम रोम बाई शिप, 3 दिन जर्नी थी। एंड मेडिटेरेनियन के अंदर में वो शिप 3 दिन From India? नो, इंडिया से वी वेंट टू रोम Okay. बाई एमए फ्लाइट। Okay. रोम से वी वेंट टू बैरूत बाई 3 days Okay. जर्नी बाई शिप। अंडरस्टूड। अरांटिका शिप था एंड मेडिटेरेनियन शिप में हम 3 दिन रहे। तो उसमें जो डिफरेंट आइलैंड थे, पोम्पई, क्रीटा, नेपल्स, हर आइलैंड में हम रुकते थे और 2 घंटे के रुकते थे। एंड वी यूज्ड टू गो, आई मीन कम बैक टू शिप एंड यूज्ड टू ट्रेवल। हम सेकंड आइलैंड में पहुंचे पोम्पई, तो क्या हुआ, हम 4 फ्रेंड थे, वी वेंट टू मार्केट। वहाँ बात करते करते इतना टाइम लग गया और शिप का टाइम था 1.5 घंटे, हम पहुँचे 3 घंटे में और शिप निकल गया आगे। वे मुश्किल क्या करें, एनीवे विद डिफिकल्टी वहाँ से हमने टैक्सी ली, मैनेज किया लोकल लैंग्वेज एंड वेंट टू नेपल्स। तो तब जाके हमको शिप मिला 6 घंटे बाद, जान में जान आई। तो ऐसी घटनाएं मेरी ज़िंदगी में काफ़ी घटी हैं कि मैं सो क्लोज। और कोई ऐसा इंसिडेंट सर जो आज याद करते हैं या उस टाइम पे जो आपके साथ रहे, सपोज के मैं अपनी बात करूं तो अभी अगर मैं 20 साल पहले बताऊं या 10 साल पहले बताऊं तो कोई एक दोस्त मेरा था, कॉलेज का पहला दिन हमारा कुछ इंसिडेंट हुआ, आज भी अगर हम उसको याद करते हैं तो बहुत हंसते हैं। तो आपके लाइफ में डेफिनेटली कुछ ना कुछ सर एक्सपीरियंस तो वैसे रहे होंगे जो आज आप याद करते हो तो बड़ी हंसी आती है, लेकिन उस टाइम पे बड़ा डरे थे आप। देखिए, मैं बंगावासी कॉलेज में था, तो मैं अभी कॉलेज यूनियन में एक्टिविटीज़ में पार्ट, छात्र परिषद में मैंने बड़ा पार्ट लिया है। तो नेचुरली यूनियन के अंदर भी क्या होता था, आपस में लड़के दोस्त आपस में कभी कभी आर्गूमेंट करते थे। एंड वी यूज्ड टू रियली बी जस्ट बी आफ्टर ईच अदर, दो अगेन वी वर फ्रेंड्स ओनली, बट कभी कभी गुत्तम गुत्ता हो जाती थी। बिल्कुल। बट ये बातें याद करते तो हमारा बचपना था। बट देन जस्ट फॉर ए टाइम, आई मीन जस्ट फॉर ए शॉर्ट टाइम। का जो प्रोफेशन है, लाइक आपने आपका फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया है ना आफ्टर योर कॉलेज, और इन विच ईयर यू आफ्टर कॉलेज 16 आई जॉइन द कंपनी। हाउ ओल्ड यू वर एट दैट टाइम? मैं 22 साल का था उन दिनों। ओके, तो 22 साल की उम्र में आपने अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन करा, विच इज अ रियल एस्टेट बिजनेस। नो, मैं अभी 20 years old। ओके, हाँ, 20 sorry, years old। 20 साल की एज में 20 साल ज्वाइन की किया। उम्र में आपने अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन करा एंड देन फिर वहाँ से चीज़ों को आपने आगे बढ़ाया, राइट? तो लाइक उसमें 20 साल में आपने ज्वाइन करा तो कौन सा, लाइक फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ईयर यू वर द मैनेजिंग डायरेक्टर, और I did my graduation, I did my math honors in from ओके यूनिवर्सिटी। मेरे फादर वाज एस्मा पेशेंट। मेरे फादर और 2 अंकल की कंपनी थी, तो मुझे लगता है कि मेरे फादर जो है जस्टिफाई कर नहीं पा रहे हैं, वो अस्थमा थे। तो मैंने कहा मस्ट ज्वाइन माई फादर। तो अंडर कंपल्शन मैंने कंपनी ज्वाइन की। जब मैंने कंपनी ज्वाइन की, शुरू में मैं रिलेक्टेड था ज्वाइन करने में, बट देन जब ज्वाइन कर ली कंपनी, देन आई वर्क वेरी हार्ड। जैसे मैंने कहा, मुझे फर्स्ट टाइम सिंघारसी में उन्होंने प्लेसमेंट किया, तो उसके बाद तो फिर मैंने कभी मुड़ के नहीं देखा। दिल से मैंने फिर मेहनत की और काफ़ी मैंने फिर काम किया। बिजनेस में सर चैलेंजेस डेफिनेटली रहे होंगे, Yes. है ना? क्योंकि बिना चैलेंजेस के फिर वो स्ट्रांग बिल्डिंग हो ही नहीं पाती है। वो फाउंडेशन जब तक स्ट्रांग ना हो, तो फाउंडेशन बिल्ड होने में कई बार मौका ऐसा रहा होगा कि यार अब कैसे होगा, ठीक है, अब ये कैसे होगा, ये ऐसा हो गया, ये तो सोचा ही नहीं था, ठीक है। फिर हाउ डिड यू लाइक डील विद दीज थिंग्स, लाइक क्योंकि ये डे टू डे लाइफ में हम लोग सब महसूस करते हैं अपनी अपनी जर्नी में। नहीं, द डिफरेंट थॉट ऑफ दिस थिंग, आई वेरी स्ट्रॉन्ग में इंजीनियर्स एंड सुपरवाइजर्स। मैंने उनसे काफ़ी लोगों से मैंने काम सीखा भी, एंड अल्टीमेटली मैंने 6 महीने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में ली सब लोगों से, एंड आई लर्न फ्रॉम देम एंड आई वाज वर्किंग विद देम लाइक टीम ओनली। वी टुक लाइक ए टीम, एंड हर काम में वी हैड ए डेडिकेशन। अगर समय था 12 महीने का, 15 महीने का, हम बिफोर टाइम हम प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए हमारा एक जज्बा था। और मैंने 80% जितने प्रोजेक्ट हैं बिफोर टाइम मैंने ख़त्म किए हैं। सिंपल आइडिया कि वी कंपनी कुड सेव मनी फॉर द मैसेज फॉर स्टाफ, एंड वी आर ऑल्सो वेरी हैप्पी। तो कंपनी की जो क्रेडिबिलिटी वाज सो हाई, बिकॉज वी नो रेंज होनी है, वी नो मटेरियल की शॉर्टेज होनी है, बट दैट पैशन यू हैड कि उस टाइम में हम कैसे उस काम को वी कुड मॉनिटर। तो मैं सब टीम को लेके आई टू वर्क। सो वो कभी मेरे डिफरेंस कभी नहीं हुए। वी यूज्ड टू हैव सम डिफरेंस, बट देन वी यूज्ड टू एग्री टू डिसएग्री। एम क्या था, टू अचीव समथिंग, यस यस यस, एंड एवरीवन वाज देयर कि इफ यू डू द वर्क यू विल बी गेटिंग ए डिफरेंट डिविडेंड्स। सो आई टू क्रिएट टारगेट्स, और हमने लाइफ के अंदर में आई थिंक जितने बड़े बड़े काम हैं हमने ख़त्म किए बिफोर टाइम। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि वर्किंग फॉर 54 ईयर्स अगर मैंने 80% काम ख़त्म बिफोर टाइम ख़त्म किया। आज हिंदुस्तान में
I am a senior most builder in the country from 69, which is S class, SCG special class, जो हमारी पेरेंट कंपनी थी. तो पीपल स्टिल कोट कि जो भी काम किया कंट्री में, कहीं भी काम किए हैं, आई डिड बिफोर टाइम. मैंने कंपनी में, कंट्री में काफ़ी जगह काम किए. आई वर्कड इन पिथौरागढ़ फॉर 8 years. ये बरेली से जाते थे, 150 किलोमीटर की हिल ड्राइव थी, रास्ते में लैंड स्लाइड भी होता था. तो 77 आई वेंट टू पिथौरागढ़. अभी तक सर हमने बात करी, आपके प्रोफेशन के बारे में हमने जाना, थोड़ा बहुत आपके जवानी के बारे में जाना, बचपन के बारे में जाना, ठीक है. आपने बताया कि कैसे कैसे फिल्में आपको पसंद हैं. तो जब सर फिल्में पसंद हैं तो उस दौर के गाने भी आपको पसंद होंगे. किस टाइप के सिंगर्स को आप सुनते थे उस वक्त, अभी भी क्या उनको सुनते हैं, और कितना मौका मिल पाता है सुनने को सर? नहीं, पहले काफ़ी क्रेजी थे. के.एल. सहगल है, कुंदन सहगल गाने काफ़ी सुनते थे. तो उनके जब बहुत दिल ही ही अच्छा टूट लगता गया है. तो जी के क्या करेंगे, जब दिल ही टूट गया, बाबुल मोरा, नैयर छुटल जाए, नहीं छुटल जाए. वो गाने कभी निकलते नहीं हैं. दैन हमारे हेमंत कुमार के गाने मुझे बहुत अच्छे लगते थे. उनमें अंदर में जो एक दर्द भरी आवाज़ थी, उसका कोई मुकाबला ही नहीं है. कहीं दिल जले, कहीं दीप जले. तो ये बड़े बड़े गाने जो हैं काफ़ी अच्छे लगते थे. आप गाते हो सर? कभी कभी जब मूड कभी कभी मूड करता है तो अच्छा लगता है, तो कभी कभी लगता अच्छा गाते हैं, लगता है. गुनगुनाते हैं, कैसे करते हैं सर? मतलब के.एल. सहगल के गाने हम काफ़ी गाते थे उन दिनों. बाबुल दोस्त दे जिनो, नैयर छुटल जाए, वो काफ़ी मन में अच्छा लगता था, गुनगुनाते थे. फिर रिसेंटली जो है, आई थिंक फ्रॉम लास्ट 3 decade में चित्रा जगजीत के गज़ल काफ़ी मुझे अच्छी लगती है. गज़ल आइकनिक. जगजीत सिंह. हाँ जी, उनके जो गज़ल होती है बहुत अच्छी लगती है. तो उनके गज़ल का मुकाबला ही नहीं है. उसमें एक दर्द छुपा हुआ है और बहुत अच्छा लगता है. जगजीत सिंह साहब के कोई एक गज़ल जो आपको लगता है कि ये दिन में 10 बार बजे तो 10 बार सुनेंगे? उनकी हर गज़ल अच्छी लगती है. तो कोई भी गज़ल है कि मज़ा आता है सुनने में. मतलब उनकी हर गज़ल में उनका मेरा फेवरेट जो है, होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज़ है, वो गज़ल उनका मेरे को बड़ा पसंद आता है. ना, अपने उनकी साइड से गज़ल बहुत अच्छी लगती है. मैं काफ़ी गाता था इनफैक्ट कि तेरी मेरी कहानी जो गज़ल थी उनकी, बहुत अच्छे गज़ल लगते थे. पढ़ के बताओ ना सर, हमको नहीं पता, कुछ बताइए ना अपने साइड से, आपको जैसा समझ में आए. बड़े पुराने, लाइक आई मेंशन कि भाई जब दिल ही टूट गया तो जी के क्या करेंगे. लयकारी में सर, ये थोड़ा सा रिदम में. जब दिल ही टूट गया हम हम जी के क्या करेंगे. अब तो क्या नहीं गाते, बट अंदरों डेफिनेटली गाते थे, अच्छा लगता था. और मैं बहुत सी पिक्चर में, मैं पुरानी पिक्चर में आई स्टिल रिमेंबर वक्त, बलदेव सिंह साहनी की, जो बलदेव साहनी की पिक्चर थी, बलराज साहनी बलराज साहनी. जी. तो क्या लाइफ में ट्रेजेडी होती है, इमीडिएटली पूरा मकान टूट जाता है, ख़त्म हो जाता है. आंधी पिक्चर बहुत अच्छी थी, सुचित्रा सेन थी उसमें. ये पिक्चर कभी दिन से निकल नहीं पाती. मदर इंडिया, उसमें राजकुमार नरगिस के बहुत ही बड़े उम्दा रोल था. तो नो राज डाउट कपूर साहब आपके फेवरेट एक्टर हैं? राज कपूर भी फेवरेट है. एंड राजकुमार भी मुझे बहुत अच्छे लगते थे. ओके. एंड नरगिस तो डेफिनेटली सदाबहार थी, सदाबहार थी. एक बड़ी महान अभिनेत्री थी. तो पुरानी जो अभिनेत्री होती हैं, फिर वो कभी भी मन से निकलती नहीं है. नहीं, अल्टीमेटली सर कहा भी जाता ना, जब कोई किसी को पसंद करता है ना, अब सपोज मैं आपको बड़ा प्यार करता हूँ, ठीक है, आपकी हर बात मेरे को पसंद आएगी उसके बाद, है ना, क्योंकि मैं आपको पसंद करता हूँ. तो वो भी चीज़ है कि जब होता है ना कि अब एक टाइम पे जब दिमाग में कोई बैठ जाता है ना, जहन में जब बैठ जाता है, तो हाँ ठीक है, मतलब इन कंपैरिजन विथ मेरे को कोई और नहीं चाहिए, यही सबसे बढ़िया लग रही है, ये सबसे बढ़िया लग रहा है. तो ऐसा भी होता है क्या सर? बीच में दो बायसेस होते हैं दिमाग में? नहीं होती है. वहीदा रहमान का था दौर था बीच के अंदर में, कमल बनु की पिक्चर थी. वो पिक्चर बहुत अच्छी लगती है हमको. देवानंद उसमें थे पिक्चर के अंदर में. गाइड क्या, सॉरी, कोई प्रॉब्लम. वेदर में पिक्चर जो थी, बहुत अच्छी पिक्चर थी, गाइड. देवानंद साहब. हाँ जी, उसमें काफ़ी स्टिल रिमेंबर मैं वो पिक्चर. जिंदगी हमने का करीब ख्वाब. 15-20 बार पिक्चर देखते थे पिक्चर. कुछ पिक्चर में बहुत, मदर इंडिया करीब 5-6 बार देखी हम लोगों ने. एक इंग्लिश पिक्चर थी साउंड ऑफ म्यूजिक, वो देखी काफ़ी मरतबा. तो कुछ पिक्चरें भी रियली शुलान, डॉक्टर जिवागो देखी थी. हम जब कॉलेज में पढ़ते थे तो कभी कभी ये हर वीक के पिक्चर देखते थे. तो उन दिनों अलग मज़ा था पिक्चर का. विश एंजॉय लॉट. तो आजकल तो इसके अलावा जो अभी है मौका नहीं मिल पाता देखने का. उसके अलावा मैंने कभी कल्चर ईवनिंग, मैंने काफ़ी प्रोग्राम मैंने ज्वाइन किया है. बिस्मिल्लाह खान थे, अपने अली खान थे. तो मुझे बड़ा शौक शहनाई था वादक. बैरकपुर में या कैलकाटा में
मैं काफ़ी जगह जब मुझे मौका मिलता था आई यूज्ड टू टेक पार्ट। एंड ये शिव कुमार खन्ना थे, संतूर वादक थे, तो मैं काफ़ी आई यूज्ड टू हियर द प्रोग्राम। अपने उस्ताद अकबर खान थे, तो काफ़ी इन लोगों के प्रोग्राम से मैं इम्प्रेस था और मैं हमेशा देखता था। तो मैंने पिक्चरों में जो पहले पिक्चर देखी ड्यूरिंग 70-80, उसके बाद में आती मैंने पिक्चर बहुत कम देखी। इक्का दुक्का पिक्चर देखी है। जब अमेरिका जाता हूँ मैं बच्चों के पास में, तो डेफिनेटली वो ओल्ड पिक्चर में देखने का मौका मिलता है, तो वैसे पिक्चर नहीं देख पाते। हम लोग बड़े लकी रहे सर, हम आपको आपसे बात कर पा रहे हैं, क्योंकि जो जर्नी रही है। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये इसमें मैं ऐड ऑन करना चाह रहा था कि एक्चुअली मैं क्यों ये बात मैंने पूछा। माय क्वेश्चन इज़ के आपने 50s का इंडिया भी देखा है, हाँ जी। आप 2024 का इंडिया भी देख रहे हैं, ठीक है। हाउ यू सीन द इवोल्यूशन, कि कैसा वो परिवर्तन आप देख रहे हो, किस तरह से हम लोग कहाँ जा रहे हैं, हम लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या अभी स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है, या फिर जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है? लाइक आपका क्या टेक है इसके ऊपर, अगर बड़े बड़े शॉर्ट में हम अगर लें सी इसको? वर्ल्ड हैज चेंज नाउ, इट्स अ चेंज। 70s में हम गए थे, आई वेंट टू पिथौरागढ़ 77, वी नो टीवी टिल 85। वी टीवी हैड तो आई थिंक कब से आना शुरू हुआ? 85 में टीवी आया था, 85 में, वेर या ब्लैक एंड फिर वाइट टीवी। जनरल पब्लिक के लिए आई हाँ थिंक जी। 90s के सो बाद वी ही आना शुरू हुआ, जब देन रामायण और महाभारत आया। यस दैट टू एक घर में एक टीवी होता था ड्राइंग रूम पे, सभी दिखते थे। डिफरेंट डिफरेंट वर्ड, वी वर वर्किंग वेरी हार्ड। आजकल जो है जब से ये टीवी या स्मार्टफोन शुरू हुए हैं, थिंग्स हैव चेंज नाउ। हर घर में हर रूम में टीवी हो गया है। बच्चों का टेंशन, बच्चे हार्ड वर्किंग भी है, बट देन बच्चों का टेंशन स्मार्टफोन ने काफ़ी डाइवर्ट कर दिया है। डेफिनेटली। पहले वी हैड नो एक्सपोजर, वी हैड नो आइडिया अबाउट द वर्ल्ड। हम दूरदर्शन में खाली न्यूज़ देखते थे। आजकल यू सी देयर आर अराउंड 100 चैनल्स। एंड दैट So टू it's फॉर अ वेरी changed now. लिमिटेड टाइम ना। हाँ, तो एक फिक्स टाइम हुआ करता था दूरदर्शन पे, वो उस टाइम पे 24/7 न्यूज़ जो आता न्यूज़ था। आती है उससे कम्प्लीटली माइंड के अंदर में डिस्टर्ब होता है। तो पहले कभी ड्राइंग रूम में न्यूज़ देखते थे, दैट इज़ ऑल, दूरदर्शन देखते थे। तो वही पुरानी बातें याद है। आजकल तो हम नई जर्नी में नहीं जाते। हमारे बच्चे कोई टीवी देखते ही नहीं है बेसिकली। तो इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड नाउ। लोग आर गेटिंग मोर मैकेनाइज, मोर नॉलेजेबल। और मेरी ग्रैंड डॉटर है, शी इज इन माइक्रोसॉफ्ट इन सियाटल, अभी दे आर एक्सपर्ट। तो हम कभी, हम वेरी बच्चे टेक सेवी, तो कभी कोई डिफिकल्टी होती है उनसे हम सलाह करते हैं बिल्कुल। कि रियलिटी लाइफ की, दे गाइड यू। तो ज़िंदगी में दौर में जो है काफ़ी कुछ नई चीज़ें हम सीखते रहते हैं। सर, अब ऑलमोस्ट हम लोग अपने एंड की तरफ बढ़ रहे हैं, लगभग हमने ख़त्म करने की तरफ हम बढ़ रहे हैं। हमारा जो भी हम लोग कॉन्वर्सेशन करना चाह रहे थे हम लोग कर रहे हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा सवाल है सर, क्योंकि एक तो आप सीनियर मोस्ट, अपने साइड से बड़ा तजुर्बा आपको ज़िंदगी का, परिवार के हिसाब से है ना, एक आदमी की ज़िंदगी में है ना, परिवार कितना बड़ा एक रोल अदा करता है, परिवार का स्ट्रेंथ, परिवार का सपोर्ट कितना बड़ा रोल अदा करता है। अगर किसी के भी जर्नी की, अगर जैसे आपकी जर्नी है, आपकी जर्नी में आपके परिवार का कितना बड़ा सपोर्ट रहा है? फैमिली का एक बहुत बेहतर रोल है लाइफ के अंदर में। जब मैंने काम किया अपनी, मेरी वाइफ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैं कभी कभी 2-2 हफ्ते, 1 महीना मैं बाहर रह के काम करता था सी सपोर्ट में। मेरे बच्चे नैनीताल में पढ़ते थे। 82 में मेरे बेटे का एडमिशन हुआ नैनीताल कॉलेज में। मैं पिथौरागढ़ पोस्टर था। हर महीने मेरी वाइफ जीप में या जाके नैनीताल जाती थी, 12 घंटे जर्नी करती थी, उसको रिसीव करते हर महीने अटेंड करती थी। मैं 6 महीने जा पाता था। तो वाइफ ने ज़िंदगी में बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूट किया लाइफ में, तभी हम चल पाए। हम 2 चक्के होते हैं गाड़ी के, बिल्कुल। वाइफ हस्बैंड 2 चक्के होते हैं। अब मेरी शादी को 50 साल होने वाले हैं इसी महीने में। एंड मेरी वाइफ 2-3 बहुत सालों बहुत से शुभकामनाएं सर व्हील आपको। चेयर में है, बट देन इट्स माई ड्यूटी, आई टेक केयर ऑफ माई वाइफ। बिल्कुल सर। सो फैमिली बैलेंसिंग लाइफ बहुत जरूरी लाइफ में। मेरे दोनों, मेरे डॉटर बेटे अमेरिका में है लास्ट 26 ईयर, बस मॉर्निंग एवरी इवनिंग में उनसे फ़ोन होते रहते हैं, वीडियो कॉल होती रहती है। एंड लाइफ में बैलेंसिंग लाइफ जो है मस्ट है। बिना फैमिली सपोर्ट के यू कांट मूव। सो टू कंक्लूड द इंटरव्यू सर, राइट, कई सारी चीज़ों पे हमने बात करी, बहुत सारी चीज़ें आपने बताई, बड़ा अच्छा लगा सुन के। ऑलमोस्ट हम लोग सर कंक्लूड कर रहे हैं इस कॉन्वर्सेशन को। बहुत सी बातें हमने करी, बहुत से राज आपने रिवील करे अपने ज़िंदगी के, बहुत से अनसुने पहलू पे हम जा पाए आपके थ्रू, आपकी जर्नी में आप हमें संग संग लेके चल रहे थे, ठीक है। इसको अगर हम लोग कंक्लूड करना चाहें तो आज के यूथ के हिसाब से, आज की परिवार सिस्टम के हिसाब से रिलेशनशिप बड़े कमज़ोर होते जा रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। आपने 50 साल आपकी गृहस्थी के कंप्लीट करने जा रहे हैं सर, है ना। एक तो बहुत बहुत शुभकामना उस चीज़ को लेके। और ये एक्सपीरियंस हम यंग
पीपल जो हम युवा हैं, ठीक है, उसको किस तरह से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं सर? क्योंकि एक तो वो हो गया, इसको देते हुए, इस मैसेज को लेते हुए, इंक्लूड करते हुए यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, फर्स्ट वर्क फैक्टर में बी मेंटेन डिसिप्लिन, डेडिकेशन एंड डिवोशन। कोई भी काम कीजिए, गिव 100%, एक जज्बा रखिए एंड हर काम को कीजिए विथ 100% सीरियसनेस। रिगार्डिंग योर फैमिली को हमेशा रिस्पेक्ट कीजिए, पेरेंट्स को एंड योर फैमिली पार्टनर को, वाइफ को, बच्चों को। देयर योर स्ट्रेंथ, दोनों मिलकर परिवार चलता है। गिव ऑल वैल्यू, आप काम भी कीजिए एंड लाइफ के अंदर में एक बैलेंस लाइफ मेंटेन कीजिए फैमिली में। सोशल काम भी कीजिए। मैं ज़िंदगी में मेरे 3 फैक्टर है, मैं काम भी करता हूँ, फैमिली लुक आफ्टर करता हूँ और सोशल काम भी करता हूँ। जो उसमें खुशी मिलती है उसका कोई वो नहीं। मैं हर हफ्ते मैं ओल्ड एज होम में शिव मंदिर भी जाता हूँ। अभी वहाँ लोग 50 एडल्ट लोग रहते हैं, उनको हम खाना खिलाते हैं, साथ में हम दिवाली मनाते हैं। ऐसे मैं जितने भी निस्वार्थ है, प्रेरणा है, मैं हर जगह पार्ट लेता हूँ। नॉर्थ बंगाल कौन सा वो डिसेबल है, हर साल स्पोर्ट्स में पार्ट लेता हूँ। और मुझे बड़ी खुशी मिलती है कि कोविड समय मैंने करीब, इनफैक्ट मैंने निवोटी हॉस्पिटल मेरा बनाया हुआ है, दिसन हॉस्पिटल मेरा बनाया हुआ है, महाराजा हॉस्पिटल में मैं ट्रस्टी हूँ। तो मुझे काफ़ी लोगों से काफ़ी अधिक बॉन्डिंग थी। तो मैंने करीब 200 सवा 200 लोगों को मैंने उनको हॉस्पिटल के अंदर में एडमिट करने में चेष्टा की और हेल्प की कि ड्यूरिंग कोविड जो है दे वर सफरिंग फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ कालीपंग, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, कूच बिहार। तो सबको आई कुड एबल टू अकोमोडेट इन हॉस्पिटल। तो वो मुझे इतनी खुशी मिली कि मैं कुछ काम कर सका। फिर कोविड के अंदर में बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। लोग सफ़र कर रहे थे, दे आर नो फूड, नथिंग। हम भी कोविड में डरे हुए थे, फिर भी हम लोगों ने जाके बस्ती में हर जगह राशन बांटा, चेष्टा की, खाने का बंदोबस्त किया, जितना हम कर पाए हमने किया। ये जो करने में जो खुशी हमने हासिल की उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। मैं ज़िंदगी में डेली अपनी ज़िंदगी में 3 पार्ट में करता हूँ। मैं 2-3 घंटे सोशल काम में अटेंड करता हूँ। मैं कहीं भी होता है, यूनिक फाउंडेशन है उसमें पार्ट लेता हूँ, संडे हार्ट है, या काफ़ी एनजीओ में मैं इन्वॉल्वमेंट हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है कि भी इस दौरान ज़िंदगी में कुछ कर पा रहा हूँ। एंड मैं सब लोगों से अपील करता हूँ, एक लाइफ को मेक मोर डिसिप्लिन, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, रिस्पेक्ट योर सोसाइटी। अपने सोसाइटी में कीप क्लीन। आप जितनी क्लीन रखेंगे सोसाइटी में उतना अच्छा लगेगा। एक बॉन्डिंग रखिए सोसाइटी में, हारमोनी डेवलप कीजिए। हमारी लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट। हमें कोविड ने सिखा दिया है कि लाइफ इज़ सो अनसर्टेन। जो ईश्वर ने लाइफ दी है उसको मीनिंगफुल लाइफ पास कीजिए। एंड विद द गॉड ब्लेसिंग वी आर सर्वाइविंग। ईश्वर का थैंक्स अदा करते हैं, हम सर्वाइव कर रहे हैं। एंड उसको लाइफ को मीनिंगफुल बनाइए, एक अच्छी लाइफ स्पेंड कीजिए। ये मेरी आपसे सबसे गुजारिश है। बहुत बहुत शुक्रगुजार है सर, इतना अच्छा मैसेज आपने हमें दिया, हमें हमारे ऑडियंस को दिया। पूरे कॉन्वर्सेशन में कुछ ऐसा रहा जो आपको लगता है कि ये पूछना चाहिए था बट एज अ होस्ट मैंने नहीं पूछा आपसे, तो अगर आप चाहें तो उसको आप इंक्लूड कर सकते हैं कि जहाँ पे जो जो चीज़ें बात करनी चाहिए थी, आई थिंक हमने ऑलमोस्ट सब कुछ कवर करा, राइट। हमने फैमिली इश्यूज़ के ऊपर बात करी, हमने ज़िंदगी के ऊपर बात करी। लाइफ अपने आप में, लोग कहते हैं ज़िंदगी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, आप क्या कहना चाहेंगे सर इसके ऊपर? जिंदगी बहुत सिंपल है। इट इज़ वी मेक द लाइफ कॉम्प्लिकेटेड। अब लाइफ को अगर आप सिंपल लीजिए, यू आर ब्लेस्ड, यू आर लिविंग द वर्ड। जैसे मैंने आपसे कहा, मैं लाइफ को 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। मैं वर्क भी करता हूँ, मैं सोशल काम भी करता हूँ, अपनी फैमिली लाइफ को भी अटेंड करता हूँ। लाइफ मतलब में तो आप अमृत है, आप फुल बरसाइए। लाइफ इज सो वंडरफुल एंड आई एम सो ब्लेस्ड टू गेट लव एंड अफेक्शन एवरीवन इन सोसाइटी। एंड जो भी काम कीजिए दिल से काम कीजिए, आप अपने मन से काम कीजिए। आपको इतना प्यार मिलता है, इतना प्यार मिलता है लोगों से कि यू आर ब्लेस्ड। सो लाइफ के अंदर में करते जाइए जब तक आपके अंदर में यू आर नेवर गेट रिटायर्ड, यू आर वर्किंग। उस लाइफ को अच्छे काम में स्पेंड कीजिए। गो टू मंदिर जी, गो टू गुरुद्वारा, गो टू आश्रम, गो टू ओल्ड एज होम, उन्हें रुक आफ्टर कीजिए। तो मेरी सबसे यही गुजारिश है, हर मोमेंट को एंजॉय कीजिए,
एंड अच्छे काम ज़िंदगी में करते तो जाइए। जिंदगी मजेदार है, हम मानना पहले शुरू करें। ज़िंदगी ही मज़ेदार, यू आर ब्लेस्ड टू लिविंग इन द वर्ल्ड। कंप्लीटली सर, ट्रू, वेरी ट्रू। ज़िंदगी फुल ऑफ मोमेंट्स, ज़िंदगी में कभी भी हाफ फुल हाफ एम्प्टी कभी नहीं होता है, हाफ फुल होता है। ग्लास इज हाफ फुल, यू कैन अगेन रिफिल द ग्लास। उस हाफ फुल को ईश्वर का शुक्र अदा कीजिए यस, कि आपको ईश्वर ने आधा गिलास पानी दिया है। ये मेरी आप सबसे वेरी ट्रू सर। सबमिशन इस है। चीज़ को मैं एक मेरी पोइट्री है, मैं उसके साथ मैं कंक्लूड करूंगा। पोइट्री का नाम ही जिंदगी है, ठीक है। इट्स बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंसेस वन कैन हैव इन देयर लाइफ। सो इट इज़ लाइक, इट्स लाइक कल एक झलक देखी जिंदगी की, कल एक झलक देखी जिंदगी की, वो मेरी राह में गुनगुना रही थी, फिर ढूंढा उसे इधर से उधर, वो आंख में चोली कर मुस्कुरा रही थी। बहुत बढ़िया। कल एक झलक देखी जिंदगी की, वो मेरी राह में गुनगुना रही थी, फिर ढूंढा उसे इधर से उधर, वो आंख में चोली कर मुस्कुरा रही थी। एक अरसे बाद आया मुझे करार, एक अरसे बाद आया मुझे करार, वो सहला कर मुझे सुला रही थी। ब्यूटीफुल। हम दोनों क्यों खफा हैं एक दूजे से, मैं उसे और वो मुझे बतला रही थी। हम दोनों क्यों खफा हैं एक दूजे से, मैं उसे और वो मुझे बतला रही थी। फिर पूछ लिया मैंने कि क्यों इतना दर्द दिया जालिम तूने। राइटर पूछ रहा है जिंदगी से कि फिर पूछ लिया मैंने कि क्यों इतना दर्द दिया जालिम तूने। वो हंस के बोली, मैं जिंदगी हूँ पगले, तुझे जीना ही तो सिखा रही। ब्यूटीफुल, लवली इंडीड, लवली। थैंक यू सो मच। जहाँ फूल खिलते हैं उसे उद्यान कहते हैं, जब फूल खिलते हैं उसे उद्यान कहते हैं, जब लोग जलते से शमशान कहते हैं। बस फ़र्क इतना ही है, शमशान में और उद्यान में, उजड़े हुए उद्यान को शमशान कहते हैं। क्या बात है सर, धन्यवाद। तो इसी नोट के साथ आई थिंक हम कंक्लूड करते हैं, थैंक यू सो मच इंडीड, है ना। बहुत मज़ा आया सर आपसे बात करके। इट्स वंडरफुल मीटिंग यू। डेफिनेटली सर, ये एक हमारे लिए भी बड़ा यादगार एपिसोड रहा, और मेनी मोर एपिसोड्स आर कमिंग। जो अभी, क्योंकि सर के साथ बात करके आप पूरा दिन बात करो, आपकी बातें ख़त्म नहीं होंगी, ठीक है। बट समय के पाबंद रहना हमारी मजबूरी भी है और ज़रूरी भी है। तो इस वजह से आज का ये एपिसोड हम यहीं पे कंक्लूड करेंगे, और आप स्टे ट्यून्ड रहें हमारे साथ, क्योंकि आने वाले एपिसोड्स में इन जैसे और भी बहुत सारे एस्पायरिंग और इंस्पायरिंग कहानियाँ हम लेके आएंगे हमारे इस शो में, जिसका नाम है द चेंज मेकर्स, जहाँ हम उनके सफ़र को सेलिब्रेट करते हैं जिन्होंने सपने देखने की हिम्मत की है। न सिर्फ हिम्मत की है, बल्कि उस तरफ हर एक ऑड्स को पार करके वो आज जहाँ हैं उस मुकाम तक पहुँचे हैं। लोग कहते हैं कि सपने नहीं देखने चाहिए, सपने पूरे नहीं होते हैं, और जब सपने पूरे नहीं होते हैं तो उनके टूटने का दर्द भी बहुत ज़्यादा होता है। मगर एक बात ये भी सही है और वाजिब है कहीं हद तक, कि आज तक पूरे भी उन्हीं के हुए हैं जिन्होंने उन्हें देखने की हिम्मत की है। वेरी ट्रू, राइट सर, वेरी नाइस। तो इसी नोट पे आई थिंक बहुत मज़ा आया सर आपसे बात करके। आपको आज का एक्सपीरियंस, आपका आज का एपिसोड कैसा लगा? क्या हमने आपसे ढंग से बात कर पाए, हम जो क्वेश्चंस हम कहना चाह रहे थे वो हम आपको कन्वे कर पाए, वो सारा एक्सपीरियंस आप इस वाले कैमरा में एक शॉट में, लाइक ऑन द काउंट ऑफ 5, 6, 7, 8, या गो सर। नहीं, समीर पे बहुत जज्बा है, मेरे क्वेश्चन पूछे ज़िंदगी के, ज़िंदगी में कितने उतार चढ़ाव होते हैं, बहुत अच्छा लगा। और मुझे ज़िंदगी में 50 साल 54 में काम कर रहा हूँ, तो मुझे डेफिनेटली ज़िंदगी में बहुत सीखा मैंने, और ज़िंदगी को एज ए एडवेंचर मैंने जिया है और जी रहा हूँ। तो आई मस्ट थैंक समीर फॉर वंडरफुल इंटरव्यू ही हैज टेकन। आगे बढ़ते जाओ, कीप मूविंग अहेड, गॉड ब्लेस। आई मस्ट शेयर वन थिंग विद माई लाइफ इन एक्सपीरियंस ऑफ ओलंपिक्स। 72 में आई गॉन टू मंचन ओलंपिक्स। मैंने हॉकी मैचेस और मैंने क्रिकेट मैच, मैंने ये फुटबॉल में सब देखे। तो उन दिनों में जो मैंने कहा था कि वो जो घटना हुई थी, पैलेस्टाइन ने जो अटैक किया था इजराइल प्लेयर्स में, तो अभी तक वो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं उसमें देख के। कभी ज़िंदगी में ऐसे घटना हो जाती है कि वो वी कांट फॉरगेट। ये 95 की बात है, सुखना में मैंने प्रोजेक्ट लिया था 96 हवलदार क्वार्टर। तो हमारे वहाँ कैंप्स होते थे, वो एलिफेंट आने का वे है कम्प्लीटली, तो एलिफेंट हमेशा आते थे। एक दिन शाम को एलिफेंट्स हमारे लेबर क्वार्टर में चले गए, करीब 10-12 एलिफेंट थे, एंड हमारे लोगों ने ड्रम बजाए, लोगों ने आग जलाई, तो एलिफेंट निकल गए। एक एलिफेंट इंसिडेंटली बच गया। मैं जीप पे था, मुझे बड़ा जोश आया,
मैंने जीप में हॉर्न बजाया और मैं उसको लगा दौड़ाने, विदाउट थिंकिंग कि अगर ये एलिफेंट मुझे उल्टा अटैक करेगा तो इसका रिपरकशन क्या होगा। बट लकली वो एलिफेंट जो है कूलली चला गया। तो कभी कभी लगता है कि हम लोग एक बचपना करते हैं या जोश में पता नहीं गलती में कर बैठते हैं, बट देन ईश्वर हमारे साथ होता है। तो ये कुछ बातें ज़िंदगी में कभी भूल नहीं पाते हैं। तो मैं आई एम वेरी हैप्पी कि आई कुड शेयर यू माई सम इंटरेस्टिंग मोमेंट्स ऑफ लाइफ। थैंक यू सो मच।